हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आप सबका इस बार वेलकम है एक प्रोजेक्ट बेस्ड एसक्यूएल लर्निंग सीरीज में। इस सीरीज में बेसिकली हम कवर करेंगे 25 इंपॉर्टेंट एसक्यूएल टॉपिक्स पर प्रोजेक्ट बेस पे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू क्रिएट 25 मिनी प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन 25 टॉपिक्स ऑफ एसक्यूएल। Either you are a beginner or you are preparing for data analyst or data scientist, ये सीरीज आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगी। हर वीडियो एक टॉपिक कवर करेगा, बट जो उसका बेस होगा वो प्रोजेक्ट बेस होगा। सो इस सीरीज का पहला पार्ट आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं आपको आज के पार्ट के बारे में बता देती हूँ। इस पार्ट में बेसिकली we are going to make a project based on the travel agency database. Okay, and यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? So here we will cover create, alter and drop statements. Okay, यहाँ पे हम बेसिकली टेबल्स क्रिएट करेंगे, उन्हें मॉडिफाई करेंगे, किसी कॉन्स्टेंट को कैसे ऐड करते हैं, कॉलम्स को कैसे ड्रॉप करते हैं, एक्सेट्रा। सो टोटल यहाँ आपको 20 क्वेरीज देखने को मिलेंगी एंड इन द एंड यू विल हैव नो डाउट्स अबाउट दिस टॉपिक विच इज क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप स्टेटमेंट। सो इफ यू रियली वांट टू लर्न एसक्यूएल इन अ प्रैक्टिकल वे तो प्लीज इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। If you will do it along with me, then you will definitely get better results. So let's start it without wasting further time. Name of this project is Travel Agency. So firstly, let's have a look at the data sets. We have here total 3 tables. Here you can see booking table, customers table, trips table. Inside the booking table, the attributes which you can see is booking ID, customer ID, trip ID, booking date and the number of people. Then in the customers table, you will see customer's ID, name of the customer, email of the customer, their phone numbers and their country, right? And in the third table, which is trips, in this table, you will see the attributes which are trip ID, destination, start date, okay, end date, prices, and then whether it's international or not. So these are our tables. अब इन tables को हम देखेंगे कि कैसे create करना है one by one. So here firstly we are going to use create statement. So our first query will be based on to create customers table. So query को I am denoting with the letter Q. Okay, Q1 is saying to create customers table. Now before creating the table, as we all know, और अगर हमें नहीं भी पता है तो we should know that टेबल क्रिएट करने से पहले हमें किसी डेटाबेस में एंटर करना होता है। सपोज हमने उसका डेटाबेस नहीं बनाया है तो पहले हम वो डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस डेटाबेस में सारी टेबल्स हमारी एंटर होंगी वन बाय वन। सो फर्स्टली वी विल क्रिएट डेटाबेस, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास इस ट्रैवल एजेंसी का कोई डेटाबेस पहले से क्रिएटेड नहीं है। So कैसे करते हैं डेटाबेस को क्रिएट? We have to write the syntax as create database and then the name of that database. So here I am using the name as travel. Okay. Now run it. And after running, you can see the green tick is here. How to check whether our database has been created or not? We have to click over here. Now you can see this travel database has been created. But we have to instruct the SQL that now we are going to enter in this database. जो भी अब हम काम करने जा रहे हैं वो इसी database में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? use और फिर database का नाम, जिस भी database में हमें काम करना है। And then we have to run it. So now you can see this travel database is now popped up with the bold letters. It means now whatever work we will do, that work will enter in this database. Correct? Okay. Now it's time to create our customer table and this is our first query. So first of all we have to know the syntax, basic syntax. और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि कैसे इन सिंटेक्सेस को लर्न करा जाए। सो गाइस, इसको लर्न नहीं करना होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली आपके फिंगर्स मूव होती जाएंगी, आपके माइंड में वो सब चीजें ऑटोमेटिकली सेट होती जाएंगी। सो कैसे करते हैं? सो सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, then we have to write the name of that table. So here I am going to write customers
ठीक है, बिकॉज हमें कस्टमर टेबल क्रिएट करनी है. ये हो गया फर्स्ट लाइन सिंटेक्स. देन आफ्टर दैट वी हैव टू एंटर द और वी हैव टू पुट द नेम ऑफ ऑल कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स. सो हियर फर्स्टली आई एम गोइंग टू राइट नेम. ओके, as you can see in the customer table, see here in the customer table, what are the columns, what are the attributes? Customer ID, name, email, phone, country. Okay, so first column is customer ID. So first of all we will write the customer ID. Customer ID. Then we have to give the data type. So here the data type is integer, and as this column is unique, means this column contains unique values, so that's why we will give it a name which is called primary key. Okay, so we have to mention that this column will work as a primary key. Then the second column, which is name. Now नेम का जो डेटा टाइप है वो है varchar. डेटा टाइप से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो पोस्टेड है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन गो एंड चेक दैट. लिंक इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक प्लीज. नाउ द थर्ड कॉलम इज ईमेल. emails data type is again varchar, and the limit which I am going to give here is 100. Then phone again varchar. Many people ask why it is not integer. As a beginner ये queries बहुत common होती हैं. So guys, हम इन फोन को कभी भी integer नहीं लेते हैं क्योंकि हम फोन से कोई calculation नहीं करनी होती है. ठीक है, so हम उसको as a varchar ही रखते हैं. Now the last one is country. Country again varchar, and the limit which I am going to give it is here is 50. Now it's time to close the bracket as all attributes has been covered now. So run it. There is some error, and let's check the error. So sorry, here we have to remove the comma because ये last column था. And again run it. Now refresh from here, and in the table section click on this icon and then click over this table icon, and here you can see our table has been created. The structure of the table has been created. Right, now we will create another table. So this is our query 2. Query 2 says to create trips table. Same format will follow, same format. Okay, so we have to simply write create table trips, bracket open. Then we have to mention all the name of the columns. If it is a primary key, then we have to mention that also, and then along with that we have to mention the data type. So the first is here. Let's have a look once again. Here it is our trips table. So here it is trip ID, destination, start date, end date, price, and is international. Okay, so we'll write trip ID, and here it will be integer and the primary key because इसकी जो भी values होंगी वो सब unique. Okay, comma, then destination. Okay, and the data type is varchar here. Okay, now start date data type will be date, comma, end date data type will be date, comma, price data type will be in decimal, and when we mention the decimal data type then we have to give the limits also. 10 means total digits कितनी होंगी maximum, and 2 means after decimal कितनी digits हो सकती हैं. And in the last column which is international, so it is boolean because आपने देखा होगा कि जो values हैं वो true and false हैं. Okay, now run it. One more thing, let me make it in a more standardized way so that आप जो करोगे वो ही आप हमेशा फॉलो करोगे. So, बिना किसी आलस के इसको हम और स्टैंडर्डाइज वे में लिख लेते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, but I am using the first letter as a capital. So now run it, and after running refresh, and after refreshing you can see the trips table has been created. Click on this icon, you can see that this table structure is created. Okay, अब आती है हमारी third query. So now third query says, any guesses? Yes, the third query is about to create
third table. Okay, and third table is what? Bookings. So we will write create table. उस टेबल का नाम देंगे. Oh sorry, it's not booking, it's booking. Then it's bookings. Okay, then opening of the bracket, and then we will give the attributes name. So first is bookings is here, and it is booking ID, customer ID, trip ID, booking date, num people. Okay. So booking ID, ID, data type is int, and it is primary key because in this booking table, in this booking table, this booking ID works as a primary key. यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आने वाला है फॉरेन कीज का. ओके, अभी पहले हम सारे नेम्स लिख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस दैट. So the next column is customer ID, and this is again integer, comma, then the trip ID. Okay, it is again integer, comma, then booking date, and its data type is date. Then number of people, and its data type is again integer. Now here we have to mention the foreign key. Okay, so basically foreign key यहाँ पे क्या कर रही है कि जो आपकी ऊपर की दो टेबल्स थी, ठीक है, इनको और इनको कनेक्ट करेगी. कैसे करेगी? लेट मी राइट फर्स्टली. सो हमारी जो पहली फॉरेन की बन रही है वो है कस्टमर आईडी. ठीक है, और ये कहां से आई है? तो इसका रेफरेंस है कस्टमर टेबल. हमें रेफरेंस देना होता है, वैसे लिखेंगे रेफरेंसेस एंड देन वी हैव टू गिव द रेफरेंस. तो कस्टमर्स टेबल से आई है और उसमें एक कस्टमर आईडी करके कॉलम है, वहां से हमने रेफरेंस लिया है. ओके, एक और फॉरेन की है हमारे पास और वो है ट्रिप आईडी. ट्रिप आईडी, इसका रेफरेंस क्या है? सो इसका रेफरेंस है ट्रिप टेबल से, ट्रिप्स टेबल, एंड कॉलम कौन सा है? कॉलम है ट्रिप आईडी. ठीक है, सी अब ये क्या कर रही है कि इस जो आपकी ये जो टेबल है, इस टेबल में दो आईडीज हैं, कस्टमर आईडी एंड ट्रिप आईडी. लुक एट हियर, कस्टमर आईडी एंड ट्रिप आईडी. सो ये जो दोनों कॉलम्स हैं ये बिलोंग करते हैं किसी दूसरे टेबल को. ठीक है, किसी दूसरे टेबल को. सो इसलिए यहाँ पे ये दोनों कॉलम वर्क कर रहे हैं एज अ फॉरेन की, और ये क्या कर रहे हैं? कनेक्ट भी कर रहे हैं उन दोनों टेबल्स से. अगर ये दोनों कॉलम्स नहीं होंगे, सपोज ये दोनों कॉलम नहीं है, तो क्या होगा? हमारे पास इस टेबल में सिर्फ बुकिंग आईडी होगी, बुकिंग डेट होगी और नंबर ऑफ पीपल होंगे, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स. ये जो बुकिंग आईडी है किस कस्टमर की है हमें नहीं पता चलेगा. तो हम इसको कस्टमर वाली टेबल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यूजिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कस्टमर आईडी. ओके, और ट्रिप्स की जो भी डिटेल्स हैं उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्रिप आईडी. So here in this table, which is bookings table, this customer ID and trip ID is working as a foreign key. Okay, and this booking ID will work as a primary key. Why? Because ये booking ID इसी table की खुद की generated है, इसी table की ही है. ठीक है, I hope it is clear. Now let's run it. Fine. So all three tables has been created. फाइन. नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेरी की तरफ. सो जो हमारी नेक्स्ट क्वेरी है दैट विल बी क्वेरी नंबर 4, और उसके लिए हम बनाएंगे न्यू फाइल. और न्यू फाइल कैसे ओपन करते हैं? तो यहाँ पे आप एसक्यूएल का आइकन देख रहे हो, प्लस का आइकन. वी हैव टू क्लिक हियर एंड देन आवर न्यू फाइल इज ओपन्ड. सो क्वेरी नंबर 4 सेज टू ऐड loyalty points to customers. इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि लॉयल्टी पॉइंट्स करके आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, कहाँ पे, कस्टमर्स टेबल में। ठीक है, ये कस्टमर्स टेबल है, इसमें अभी तक कोई लॉयल्टी पॉइंट जैसा कॉलम नहीं है, वो हमें ऐड करना है। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे? फॉर दैट अब यहाँ पे जो यूज होने वाला है वो होने वाला है ऑल्टर का। सी, अभी तक हमने क्रिएट को यूज किया है, अब हम यूज करने जा रहे हैं ऑल्टर। सो ऑल्टर के लिए हम जो सिंटेक्स यूज करेंगे वो होगा ऑल्टर। ठीक है, नाउ सॉरी ऑल्टर टेबल। नाउ किस टेबल को करने जा रहे हैं उसका नाम हमें मेंशन करना होता है। सो कस्टमर्स टेबल को हमें में चेंजेस करने हैं। सो कस्टमर्स क्या हमें करना है? हमें नया कॉलम ऐड करना है। सो वी विल राइट ऐड, ओके, एंड देन वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द कॉलम। सो नेम ऑफ द कॉलम इज दिस लॉयल्टी पॉइंट्स। कॉपी पेस्टिंग, ओके, एंड अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अगर कोई नया कॉलम बना रहे हैं तो उसका डेटा टाइप दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ भी इसका हमें डेटा टाइप देना होगा और वो हम दे रहे हैं एज इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज आप देखोगे कि अगर लॉयल्टी पॉइंट्स किसी कस्टमर के नहीं है, ठीक है, तो डिफॉल्ट में हम एक वैल्यू देना चाहते हैं। सो अगर कोई भी वैल्यू डिफॉल्ट में आप पुट करना चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये आ जाए, हम सपोज जो भी हमारे डेटा एंट्री के लोग हैं उन्होंने वैल्यू फिल करना भूल गए या है ही नहीं उसकी कोई वैल्यू, सो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू तो आ जाए, अदरवाइज क्या होता है? चार्ट क्रिएट होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं डिफॉल्ट। अगर बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू एंटर करानी है, सो वी हैव टू राइट इट डिफॉल्ट, और फिर जो भी वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट देना चाहते हैं, सो आई एम गिविंग हियर 0। तो अगर कुछ भी फिल नहीं है, इट मींस जो लॉयल्टी पॉइंट है कस्टमर के वो ऑटोमेटिकली 0 फिल हो जाएंगे। मैं बहुत डेप्थ में आई हूँ अपनी आप लोग एक्सप्लेन कर रही हूँ और बहुत ऊपर से भी लेरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। इफ एनी प्रॉब्लम गाइस प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मेरे को हेल्प मिले नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और इंप्रूवमेंट्स लाने की। ओके, सो नाउ रन इट। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये लॉयल्टी पॉइंट जो है वो क्रिएट हुआ है इस कस्टमर टेबल में या नहीं। सो क्लिक करते हैं इस टेबल आइकन पे एंड हियर हिप हिप हुर्रे, सो आवर लॉयल्टी पॉइंट एट्रीब्यूट हैज बीन क्रिएटेड। इजी, ओके। अब हम आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। सो दिस इज आवर क्वेरी नंबर 5। आई एम वेरी बैड इन टाइपिंग, ओके। So now our fifth query says to add a check constant which ensures trip price is not negative. Getting guys? So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें एक कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है, चेक करना है, एक कांस्टेंट यूज करना है। किस लिए? टू चेक जो ट्रिप प्राइस है वो नेगेटिव में ना हो। हियर इट इज प्राइस, कोई भी ट्रिप प्राइस नेगेटिव में नहीं होता है, राइट? कोई भी अपनी जेब से हमें ट्रैवल नहीं करवाएगा। सो यहाँ पे हमें ये चेक करना है। सो कांस्टेंट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। कांस्टेंट बेसिकली रूल्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी कॉलम में। जैसे कोई कॉलम है प्राइस का, तो हमें ये इंश्योर करना है कि यहाँ जो भी वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जब भी वो रूल अप्लाई करेंगे उसको हम सिंपली कांस्टेंट बोल देते हैं, राइट। सो अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। चूंकि हम कुछ नए चेंजेस करने जा रहे हैं अपने कॉलम में, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर ऑल्टर। ऑल्टर क्या? ऑल्टर टेबल, ओके। ऑल्टर व्हिच टेबल? सो ऑल्टर ट्रिप्स टेबल, फाइन। नाउ व्हाट टू ऑल्टर? टू ऐड कॉन्स्टेंट्स। अब हम क्या देंगे? इस कांस्टेंट का नाम देंगे। गाइस ये नाम देना क्यों जरूरी है? पहले मैं नाम दे देती हूँ, देन आई विल टेल कि क्यों जरूरी है। सो हमने इसका नाम दिया है ये चेक प्राइस पॉजिटिव। सारा कुछ कैप्स लॉक में हो गया, आई एम नॉट लाइकिंग इट। चेक प्राइस पॉजिटिव, ओके। अब हम क्यों नाम देते हैं? तो हम नाम इसलिए देते हैं कि अगर कोई एरर आई सपोज, तो वो एक जनरलाइज्ड एरर ना हो। जो भी एरर आएगी एटलीस्ट उसमें मेंशन होगा कि भाई आपकी चेक प्राइस पॉजिटिव में ही कुछ इश्यूज हैं, आप उसको रेक्टिफाई करो। दूसरा, अगर हमें कभी फ्यूचर में ये कांस्टेंट ड्रॉप करना है, ये रूल हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि हम कांस्टेंट को कैसे ड्रॉप करें। हम नहीं लिख सकते ना ड्रॉप दिस कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट होंगे जब हम बिग बिग प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे। सो किसी भी कांस्टेंट को ड्रॉप करने के लिए उसका नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें। दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट, सो व्हिच इज हियर चेक प्राइस पॉजिटिव। नाउ वी विल अप्लाई चेक, okay, then we have to give the rule. So rule is here that price should not be lesser than price should be greater than 0 always.
ठीक है, देखिए रन करने से पहले ही एक्सट्रीमली सॉरी, रन करने से पहले ही कोई एरर आने वाली है कि नहीं आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्रॉस का सिंबल नहीं है। अगर सपोज मैंने यहाँ से कोलन हटा दिया और एंटर कर दिया, ठीक है, या फिर सपोज ब्रैकेट हटा दिया और कोलन लगा दिया, सो हियर यू कैन सी यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है और ब्रैकेट मिसिंग होती है क्रॉस का सिंबल आ गया है, ठीक है। सो बीइंग अ बिगनर हमको ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी होती है, स्मार्टली वर्क करना होता है थोड़ा। अभी देखिए वो क्रॉस चला गया, ठीक। नाउ जस्ट रन इट। सो आफ्टर रनिंग वी कैन सी कि हमारा जो ये कांस्टेंट चेक पॉजिटिव एडिशन है ये ऐड हो चुका है। फाइन, इसको अब हम टेबल पे नहीं देख सकते हैं क्योंकि अभी हमने कोई भी वैल्यूज मेंशन नहीं करी है। अगर हम कोई वैल्यूज मेंशन करेंगे और वो नेगेटिव में जाती है देन डेफिनेटली वहां पे एक एरर आएगी। अब हम आते हैं क्वेरी नंबर 6 पे। ओके, सो हमारी क्वेरी 6 क्या कहती है? मेक फोन नॉट नल, ठीक है। इट मींस जो हमारा फोन है वो नल ना। इसको कैसे करेंगे? फॉर दिस वी विल राइट alter table. Okay, what is the name of the table? So here we will have to alter the customers table. Here we will use modify. Okay, because यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल में चेंजेस कर रहे हैं। So हम यहाँ पे लिखेंगे modify. एंड मॉडिफाई किस में करना है, किस कॉलम में करना है, उस कॉलम का नाम देंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे फोन और फिर उसका डेटा टाइप। सो इट्स varchar along with the limit and then we have to mention its property. तो यहाँ पे जब हम फोन कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका हम यहाँ पे देखिए कोई कांस्टेंट कोई रूल नहीं पुट कर रहे हैं, राइट। हमने डायरेक्ट लिखा मॉडिफाई करो आप, किसमें? फोन कॉलम में। और क्या मॉडिफाई करना है कि उसको एज अ varchar करना है और उसमें जो फीचर पुट करना है वो करना है नॉट नल, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब हमारा कॉलम जो है वो बाय डिफॉल्ट नॉट नल है। ओके, मतलब उसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले हम वैल्यूज पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि प्राइस ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, नहीं है तो फिर एरर आएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हमारा कॉलम है उसका फीचर ही यही है, उसका जो बेसिक डेफिनेशन है उस कॉलम की वही यही है, उसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं आएंगी। ओके, सो जो आपका यहाँ पे मॉडिफाई वर्क कर रहा है वो कर रहा है टू क्रिएट न्यू डेफिनेशन ऑफ द कॉलम। और यहाँ पे कॉलम वही है, बस हमने एक रूल ऐड कर दिया है। लेटर ऑन हम इस रूल को सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द एंड, सॉरी, जस्ट रन इट। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेरी which is query number 7 and it says to add default value in booking date. ओके, एक बुकिंग डेट में कोई भी एक डिफॉल्ट वैल्यू हमें ऐड करनी है। सपोज अगेन वही बात, अगर मिस हो गई डेट फिल होना या सपोज हमने कोई ऐसा रूल सेट किया है कि अगर कोई भी डेट एंटर नहीं है तो हमें वहां पे करंट डेट मेंशन कर देनी है, ठीक है। जो भी डेट है वो आज की डेट उसमें आ जाए, सिंपल, सो दैट हमारी जो फर्दर एनालिसिस है उसमें कोई भी हर्डल्स ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली ऑल्टर द टेबल। Which table we will alter? We will take alter bookings table, ठीक है। और हम यहाँ पे फिर से मॉडिफाई करने जा रहे हैं किसको? बुकिंग डेट को। See, in this booking table there is column called booking date, right? इसको हम alter मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं? We will write date time default current time stamp. नाउ सो ये जो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये जो करंट टाइम स्टैम्प लिखा है ये क्या है? ये है एक बिल्ट इन फंक्शन। ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। फाइन, और अब हमने यहाँ पे मतलब कि डिफॉल्ट कर दिया है इसको, ठीक है। मतलब जो भी करंट डेट एंड टाइम है वो बाय डिफॉल्ट एंटर हो जाएगा। किस में एंटर हो जाएगा? बुकिंग डेट के कॉलम में। अब आती है बात कि ये डेट टाइम क्या है, तो ये डेट टाइम है डेटा टाइम। आई होप इट्स क्लियर। सो हमने ऑल्टर
किस टेबल को किया है, किस टेबल को, बुकिंग्स की टेबल को किया है। अब उसमें हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं बुकिंग टेप नाम का एट्रीब्यूट या कॉलम, कॉलम को ही हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं या फीचर भी कहते हैं, ठीक है, जिसका डेटा टाइप है डेट एंड टाइम। उसको हम सेट कर रहे हैं डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट पे क्या सेट कर रहे हैं कि करंट टाइम स्टैम्प आ जाए, जो भी करंट डेट है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू रन दिस क्वेरी। आई होप इट इज क्लियर ना। हमने यहाँ पे चेंजेस क्या किए हैं, हमने बेसिकली जो भी बुकिंग डेट है अगर उसमें कोई वैल्यू फिल नहीं है तो उसमें करंट डेट हमने फिल कर दी है, सिंपल। स्टिल अगर गाइस कोई भी इशू हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स इज ओपन ऑलवेज एंड योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम्ड। आई विल बी हैप्पी अगर आप लोग अपनी क्वेरीज पोस्ट करेंगे। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। तो ये क्वेरी हमारी फिर से हमें बोल रही है एक नई टेबल क्रिएट करने के लिए। सपोज आपके पास डेटाबेस है, उसमें बहुत सारी टेबल्स हैं, बट अब आपको बीच में एक नई टेबल ऐड करने का इंस्ट्रक्शन आ गया। तो अब आप उसको कैसे ऐड करोगे? सो यू सिंपली हैव टू राइट, फर्स्टली लेट मी राइट द क्वेरी देन आई विल टेल। सो क्रिएट टेबल टू असाइन एजेंट्स टू क्रिप्स, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं? सिंपल, we will follow the previous sentence which is create table and then we have to write the name of that table. So हम यहाँ पे दे रहे हैं trip assignment. Okay, assignments. Okay. अभी यहाँ पे trip assignments spelling is correct here. So now we will provide the column name. So our first column is here agent ID. ये हमको बताया गया है। जो भी हम जिस भी प्रोजेक्ट पे हैं वहां से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, हमें इस नाम की ये टेबल ऐड करनी है और उसमें ये कॉलम्स हैं। सो इसमें नथिंग टू वरी कि हम ये कहाँ से लाएंगे नए, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ट्रिप आईडी, उसका जो डेटा टाइप है इट इज इंटीजर एंड देन असाइनमेंट डेट, इसका जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम है। इसको हम डिफॉल्ट पे सेट कर दे रहे हैं करंट टाइम स्टैम्प पे, ठीक है। सी यहाँ पे अभी तक हमने प्राइमरी की मेंशन नहीं करी है। अदरवाइज पहले अभी हम क्या कर रहे थे, इनिशियली पहले कॉलम में जो यूनिक था उसमें हम प्राइमरी की मेंशन कर देते थे, ठीक। बट यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स ऐसे हैं जो अपने आप में यूनिक हैं। सो यहाँ जो हम प्राइमरी की मेंशन करेंगे वो कहलाएगी कॉम्पोजिट प्राइमरी की। नाउ व्हाट इज कॉम्पोजिट प्राइमरी की? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। जब वो दोनों एक साथ मिलते हैं तो वो अपने आप में एक यूनिक रो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। सपोज वी हैव स्टूडेंट आईडी, ओके, एंड वी हैव सब्जेक्ट आईडी। हर स्टूडेंट के पास एक ही सब्जेक्ट तो होगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के पास एक ही स्टूडेंट नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। सो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये अपने आप में एक यूनिक रो क्रिएट करेंगे, ओके। सो जब हम प्राइमरी की में इन दोनों को मेंशन करेंगे, दोनों कॉलम्स को मेंशन करेंगे, तो उस प्राइमरी की को हम बोलेंगे कि इट इज अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की, ओके। सो लेट्स राइट हियर इट इज प्राइमरी की। अब कैसे इसको हमें शो करना होता है? हमें सिंपली दोनों कॉलम्स ब्रैकेट में दे देने हैं। सो एजेंट आईडी है और जो दूसरी है वो है ट्रिप आईडी, ठीक है। एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड यूज द कॉलम्स। नाउ रन दिस. And after running, once you will refresh from here, you can see that your new table, which is trip assignment, has been created. See, इसमें हमारे पास agent ID आ गई, trip ID आ गई, and assignment date आ गया. Okay. Now come to the next query, and this query says, so the number of this query is 9, and this query says, draw column loyalty points from customers table. अभी हमने लॉयल्टी पॉइंट का एक कॉलम बनाया था, राइट? देखिए कहाँ बनाया था, ये ऐड किया था ना लॉयल्टी पॉइंट। अब हम इसको ड्रॉप करने जा रहे हैं। सो बेसिकली अगर हमें कभी कोई कॉलम ड्रॉप करना पड़े टेबल्स का तो वो कैसे करेंगे, उसका ये सिंटेक्स है। सो वी हैव टू सिंपली राइट ऑल्टर टेबल, ओके। किस टेबल को, उसका नाम लिखते हैं। सो कस्टमर्स टेबल। क्या करना है अब हमें कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था मॉडिफाई, यहाँ पे लिखा था ऐड, ओके। और क्या किया था,
दिस इज इट। सो अब हम यहाँ कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, हमें ड्रॉप करना है। सो हम डिलीट करने के लिए सिंपली लिखते हैं ड्रॉप, ओके। और फिर क्या ड्रॉप करना है, कॉलम ड्रॉप करना है, तो हम लिखेंगे कॉलम और फिर उस कॉलम का नाम। सो नेम ऑफ द कॉलम इज लॉयल्टी पॉइंट्स एंड दिस इज इट। नाउ रन इट। सी यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट्स है, ओके। अभी हम इसको जब रन कर देंगे, देन आफ्टर दैट वंस अगेन क्लिक हियर ऑन द कस्टमर्स टेबल, नो लॉयल्टी पॉइंट्स। हियर यू कैन सी द लॉयल्टी पॉइंट्स, हियर लॉयल्टी पॉइंट्स हैज बीन डिलीटेड, ओके। नाउ कम टू द क्वेरी नंबर 10। अब हमें इस क्वेरी में क्या करना है, हमें पूरी ये जो हमने ट्रिप असाइनमेंट टेबल है यही डिलीट कर देनी है। सो अगर हमको कभी अपने प्रोजेक्ट में कोई पूरी टेबल ही डिलीट करनी है, वो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। सो डिलीट ड्रॉप और डिलीट आर सेम थिंग्स गाइस। सो ड्रॉप द एंटायर ट्रिप assignments table, okay. For that we have to simply write drop table if exist, which table, trip assignment. Now अभी हमने जब कॉलम ड्रॉप किया था तो सेंटर में लिखा था ड्रॉप, इन बिटवीन लिखा था, राइट। बट जब हमको टेबल ड्रॉप करनी होती है तो जो ये ड्रॉप कीवर्ड है ये हमें स्टार्टिंग में ही यूज करना होता है। नाउ सेकंड थिंग, इफ एग्जिस्ट हमने क्यों यूज किया है। सो बेसिकली ये हमें हेल्प करता है जब हम किसी सेम स्क्रिप्ट को बार बार मल्टीपल टाइम्स रन करा रहे होते हैं। ऐसा तब होता है जब हम किसी टेस्टिंग टाइम में होते हैं या कोई सेटअप क्रिएट कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स रिलेटेड। सो उस टाइम पे हम सेम स्क्रिप्ट को मल्टीपल टाइम्स रन कराते हैं। तो अगर हम ऑलरेडी पहले रन करा चुके हैं तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी टेबल, राइट। तो वो एरर थ्रो करेगी। तो सिंपली एरर से बचने के लिए हमने लिख दिया इफ एग्जिस्ट, अगर ये टेबल एग्जिस्ट करती है तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, सिंपल। नाउ रन इट एंड okay, after running we can see that our trip assignment table has been deleted. यहाँ पे अब वो टेबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेरी पे, और नेक्स्ट क्वेरी के लिए हम नेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे। सो आई एम ओपनिंग फाइल फ्रॉम हियर, दिस प्लस आइकन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेरी सेज add unique constraint on email in customer table. So इसको कैसे करेंगे, सिंपली वी हैव टू राइट ऑल्टर टेबल कस्टमर्स, ओके। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट ऐड करना है। ये आपका एक काइंड ऑफ रिवीजन है। अब आप इसको फटाफट करते जाओ, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल जहां पे जरूरत होगी आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिक ईमेल। यूनिक ईमेल क्या है, क्या हम बताया था, कांस्टेंट के बाद हम उसका नाम देते हैं। अगर हमें कभी ड्रॉप करना पड़े तो उसका नाम मेंशन करना जरूरी होता है। अब हम उस कांस्टेंट को लिखेंगे, तो वो कांस्टेंट है यूनिक। किस कॉलम में हमें मेंशन करना है, ये कांस्टेंट ऐड करना है। सो इन द ईमेल कॉलम, सिंपल। नाउ रन दिस एंड इट इज डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेरी सेज टू ऐड चेक कांस्टेंट, ओके, टू ऐड चेक कांस्टेंट किसमें, इन नम पीपल इन बुकिंग्स टेबल। और हमें क्या करना है, नम पीपल में क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो नंबर ऑफ पीपल है, कहाँ गई हमारी टेबल, बुकिंग्स टेबल, ये रही बुकिंग्स टेबल, इसमें ये नंबर ऑफ पीपल है, ठीक। आते हैं इसके डेटा सेट की तरफ। सो यहाँ नंबर ऑफ पीपल 2 है, 1 है, 4 है, लाइक दिस। सो हमें ये कांस्टेंट ऐड करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी ही होनी चाहिए, ओके। तो अब हम कैसे कांस्टेंट ऐड करेंगे, so for that we have to write alter table, किस टेबल को, बुकिंग्स टेबल को, ठीक है। क्या करना है, ऐड कॉन्स्टेंट्स करना है, कांस्टेंट, ओके। कौन सा हमें कांस्टेंट ऐड करना, सॉरी पहले हम कांस्टेंट का नेम देंगे। सो द नेम इज चेक नम पीपल। ये आप अपने मन से कुछ भी नेम दे सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। नाउ जो हम कांस्टेंट ऐड करने जा रहे हैं वो चेक है, उसका नाम चेक है। किस कॉलम में ऐड करने जा रहे हैं, सो नम पीपल में ऐड करने जा रहे हैं, ओके। और ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको रन कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ये अब इजी है, ये हम ऑलमोस्ट
रिवीजन की तरफ है और जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं. सो अब हम आते हैं 13th क्वेरी पे एंड दिस क्वेरी इज सेइंग टू ऐड अ न्यू कॉलम. ठीक है, विच इज ट्रिप टाइप. किसमें? टू ट्रिप टेबल्स. ओके, सो कैसे हम करते हैं? कोई भी नया कॉलम कैसे ऐड करना है? वी हैव टू सिंपली राइट एट ऑल्टर टेबल्स. किस टेबल में ऑल्ट्रेशन करनी है? ट्रिप्स टेबल में ऑल्ट्रेशन करनी है. क्या ऑल्ट्रेशन करनी है? ऐड करना है. क्या ऐड करना है? ट्रिप टाइप नाम का कॉलम ऐड करना है. फिर उसका हमें डेटा टाइप देना है. सो जो डेटा टाइप है वो है varchar, उसकी लिमिट है 50 एंड दिस इज इट. नाउ रन इट. सो आफ्टर रनिंग यू कैन सी कि ट्रिप्स टेबल जो थी इसमें एक ट्रिप टाइप का ये रहा, ट्रिप टाइप आपका ऐड हो गया है. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे एंड दिस इज क्वेरी नंबर 14. So this query says to rename phone number, phone column. ठीक है, in customers table. rename किस नाम से हमें रिप्लेस करना है फोन को? टू मोबाइल. So we will write alter table. Okay, which table? Customers table. अब देखिए हमें रीनेमिंग करनी है. सो रीनेमिंग करने के लिए हम यूज करेंगे रीनेम कॉलम. ठीक है, रीनेम कॉलम. किस कॉलम को? फोन को. किस में चेंज करना है? टू मोबाइल. वेरी सिंपल. नाउ सिंपली रन इट एंड लेट्स चेक. कस्टमर्स में जो फोन था क्या वो मोबाइल से रिप्लेस हो गया है? सो नाउ फोन इज रिप्लेस्ड विद मोबाइल. इधर आप देखोगे सो इट वाज फोन. नाउ इन द न्यू टेबल इट इज रिप्लेस्ड विद मोबाइल. ओके, अब आते हैं क्वेरी नंबर 15 पे. So 15 is saying to change price column in trips table to increase precision. So precision means what? जो decimal values थी वो और उसमें add हो जाए. ठीक है, so हम यहाँ पे करेंगे we will write alter table trips table. Now here we will modify price column. उसका data type लिखेंगे and then we will write comma 2. ठीक है, पहले यहाँ 10,2 था, अभी हो गया है 12,2. So precision 2 points और increase हो गया है. So now run it. Fine. अब हम आते हैं next query की तरफ. So our next query is query number 16 and it says to add a table payments for tracking बुकिंग पेमेंट्स. ओके, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ड्रॉप करके फटाफट में टाइप कर दे रही हूँ टेबल का सिंटेक्स बिकॉज वी नो हम टेबल को कैसे बनाते हैं. सो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें सिंपली क्रिएट करनी है टेबल. ओके, सो हियर योर टेबल इज क्रिएटेड पेमेंट्स. इस टेबल के फीचर्स क्या क्या है? यहाँ पेमेंट आईडी है जो कि प्राइमरी की है, बुकिंग आईडी है, अमाउंट पेड कॉलम है, पेमेंट मोड कॉलम है, पेमेंट डेट कॉलम है एंड देन देयर इज अ फॉरेन की. फॉरेन की यहाँ पे क्या है? बुकिंग आईडी है जो कि बुकिंग टेबल में से जिसका रेफरेंस लिया गया है. सो अब इसको रन करते हैं. आफ्टर रिफ्रेशिंग वी कैन सी द पेमेंट्स टेबल हैज बीन क्रिएटेड. गाइस इसमें कुछ भी नया नहीं किया है, पुराना है सब कुछ. आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे. अननेसेसरी टाइम इंक्रीज होता वीडियो का, दैट्स व्हाई मैंने इसको स्किप कर दिया. नाउ आते हैं क्वेरी नंबर 17 पे. सो क्वेरी 17 सेज टू ऐड चेक कांस्टेंट to payments for allowed payment modes. Okay, ये टेबल बनाने का पर्पस ये था कि अगर हमें जैसे अब यहाँ तो सिंगल सिंगल कॉन्स्टेंट्स दे रहे थे, राइट? एक ही कंडीशन दे रहे थे कि ये ग्रेटर देन 1 है, 0 नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. बट अगर हमें 3-4 रूल्स पुट करने हैं कि ये भी ना हो, ये भी हो, ये भी ना हो, समथिंग लाइक दिस, तो कैसे करते हैं? इसके लिए ये मेरे को टेबल बनानी पड़ी. सो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले तो ऑल्टर टेबल, क्योंकि हम चेंजेस कर रहे हैं. किस में चेंजेस कर रहे हैं? पेमेंट्स टेबल में. क्या चेंजेस कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट. ठीक है, और जो हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे. तो उसका नाम है चेक पेमेंट मोड. ओके, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे उस कांस्टेंट का नाम. तो ये जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे. सो दैट कांस्टेंट इज चेक. करेक्ट, दिस इज द नेम ऑफ द कांस्टेंट.
एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट इनबिल्ट एसक्यूएल कॉन्स्टेंट। ये नाम हमने खुद से दिया है चेक पेमेंट कोड, जिसको हम फर्दर फ्यूचर में कभी ड्रॉप करना हो, डिलीट सॉरी कुछ नए चेंजेस करने हो तो हम कर सके। और ये चेक जो है ये रूल है कि चेक करो भाई कि क्या इसमें ये वैल्यूज है, क्या ये 1 से ग्रेटर है, ये इनबिल्ट फंक्शन है। तो क्या चेक करना है हमें, पेमेंट मोड कॉलम को चेक करना है। ओके और उसमें जब हमें कई सारे रूल्स देने होते हैं तो हम लिखते हैं इन और फिर हम एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो यूपीआई होना चाहिए हमारी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग, और क्या होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नेट बैंकिंग, आई एम सिंपली राइटिंग नेट बैंक, एंड द लास्ट वन इज कैश, राइट। सो ये चीजें होनी चाहिए। नाउ पुट द कोलन। So after running, this is done. Now come to the query number 18. And this query 18 says add index, okay, on destination in trips table to improve search speed. Guys, हम index क्यों देते हैं? To improve the search speed. Okay. और इसका जो हमारा सिंटेक्स होगा, that syntax will be wait. So इसका जो सिंटेक्स होगा, that syntax will be create index and then the name of the index. So it is idx destination. किसमें on यूज करेंगे, ट्रिप टेबल पे, ठीक है, इन द डेस्टिनेशन कॉलम। नाउ रन इट। तो हमने बेसिकली एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया। अब आते हैं क्वेरी नंबर 19 पे। सो हियर वी हैव टू ड्रॉ चेक कांस्टेंट ऑन प्राइस इफ इट एग्जिस्ट्स। सी सो यू रिमेम्बर हमारा कांस्टेंट नेम क्या था प्राइस में, वो हमको देखना होता है और फिर हम वो सिंपली नेम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो वी हैव टू ड्रॉप द चेक कांस्टेंट, और क्या नाम है उस कांस्टेंट का, सो द नेम वाज चेक प्राइस पॉजिटिव। आई होप यू रिमेम्बर। सी यहाँ पे था ना चेक पॉजिटिव, in this file it was see check price positive। ये कांस्टेंट अभी हमें ड्रॉप करना है, हमको बोला गया है कि भाई इसे ड्रॉप कर दो। तो कैसे करेंगे, ड्रॉप द नेम ऑफ द कांस्टेंट एंड देन द नेम ऑफ दैट कांस्टेंट दैट वी हैव गिवन एंड देन द कोलन, सिंपली run it। now the last query guys, which is query number 20, drop the payment table entirely। तो क्या हमने जब टेबल हमें ड्रॉप करनी होती है तो हमें ड्रॉप को पहले ही मेंशन करना होता है। कौन सी टेबल ड्रॉप करनी है, इफ एग्जिस्ट्स, ठीक है, विच टेबल, पेमेंट्स, सिंपल। एंड देन अभी देखिए यहाँ पे पेमेंट्स टेबल जो है वो शो हो रही है, जब जैसे हम इसे रन करेंगे चली जाएगी। सी नो पेमेंट्स टेबल नाउ। सो ये हमारी 20 क्वेरीज थी गाइस। इससे रिलेटेड जो भी डेटा सेट है, जितनी भी फाइल्स हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फॉर द प्रोजेक्ट नंबर 2। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।